we are continuing problems on equity recurrence. In next, we have problem number 4. So in this case, we are given that ABC Limited has a net profit margin 12%. So we are given net profit margin. This is 12%. Debt equity ratio 2 times, which is debt upon equity. So ratio is 2 times, and total assets turnover ratio. Total assets turnover. So this one is given to be 1.67. So they are asking what is return on equity for the company. So we have to find out ROE. So total asset turnover is sale upon total assets, and debt upon equity ratio is debt upon equity, and total assets also we know that. So this is equity plus debt. So it is better that so we can assume suppose equity debt upon equity is 2 times. So let us assume like equity is 1000. So therefore debt is 1000 into 2000. So therefore total assets are equal to 3000. So total assets into asset turnover ratio, you will get a sale. So therefore sale is equal to total assets into asset turnover ratio. So 3000 into 1.67, which is 5000. So net profit margin, this is 12%. Net profit margin is net profit upon sale. So from here you get net profit. Sales we already have, which is sale into net profit ratio, which is 12%, 1600. Now you can determine return on equity, ROE. So this is net profit upon equity into 100. Net profit is 600. Equity we have taken 1000 into 100. So return on equity is 60%. Is return on equity. So next we have question number 5. So profit after tax for a firm is 10,000. So in this question, profit after tax is 10,000. It is given. Dividend payout is 25%. So GP 25. So from here you get a dividend 2500 of this profit. So growth is 2%. Growth of earning 2%. And scrip means a share trades at 1.5 times of its EPS. This is called a price earning ratio. So this is your 1.5. So here you get your market value of equity. Earnings into price earning ratio. Earnings are 10,000 into 1.5, 15,000 is market value of equity. So they are asking determine required return on equity by equity shareholder. So now you can determine required return. So dividend upon market price, and growth is also given. So you also add into 1 plus G plus G. So dividend is how much? 2500 into growth 1.02. Market value is 15,000 plus growth 0.02. So this one is our 2500 plus 2% divided by 15,000. This is 0.17 plus 0.02. So it is 0.19 is equal to 19% is required return on equity. So question 6. So in this case, company is contemplating an issue of new equity share. Firm's equity shares are currently selling at 125. So आपको करंट प्राइस दिया है शेयर का 125, एंड कंपनी वांट्स टू मेक अ न्यू इशू
तो कंपनी ने नए शेयर इशू करनी है। हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ डिविडेंड पेमेंट पर शेयर फॉर द लास्ट 5 ईयर, तो आपको डिविडेंड्स दिए हैं फॉर द लास्ट 5 ईयर, डिविडेंड्स फॉर लास्ट 5 years. So year is given, so 1, 2, 3, 4 and 5. Dividend per share is given. So DPS 10.7, 11.45, so 12.25, 13.11, 14.03. So these are the dividends for the past 5 years, and further they are saying so there will be brokerage is 3% on current selling price of share. Brokerage is 3% on selling price of a share. So you are required to determine growth rate in dividend. तो पहले आप देखिए ग्रोथ कितनी है आपकी। तो आपके पास डिविडेंड है पास्ट ईयर के, तो उसमें सबसे पुराने डिविडेंड को कंपेयर कीजिए जो सबसे आपका लेटेस्ट डिविडेंड है। कितना टाइम गैप है, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो वी कैन से दैट ग्रोथ डिटरमिन होगी। तो 10.7 में आप ऐड कीजिए ग्रोथ फॉर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर डिविडेंड है बिकम 14.02, so it means 1 plus g raised to power 4. तो 10.7 will go here, उसको डिवाइड कीजिए 14.03 डिवाइडेड बाय 10.7, इसे 1.31। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो लेट से लेट आप ग्रोथ ले रहे हैं सपोज 5%, वट इज दिस वैल्यू? तो 1.05 raised to power 4 is equal to, so 1.05 into 2, 3, 4, this is 1.2155. तो लेटेस्ट ट्राई 6%। तो इस तरीके से आपको वीकेंड ट्रायल करना पड़ेगा। वैसे और मेथड भी है, वो भी देखते हैं। 1.06 इंटू 234, दिस इज 1.262। तो लेटेस्ट ट्राई मे बी अवर दिस इज स्लाइटली हायर, मे बी 8%, 1.08 raised to power 4, 1.08 into 234, 1.36. This is more, it means 7% will come for 4 years. So 1.07 into 234, 1.311. This is exact. So therefore growth is 7%. वैसे आप ये भी कर सकते हैं, 1 plus g आपको दिया है, रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1.3112, उसकी पावर कर लीजिए इधर 1/4, 1.3112 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। इसका कीजिए आप स्क्वायर रूट और उसका फिर स्क्वायर रूट कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा 1.3112 अंडर रूट दिस इज कमिंग 1.07। तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर ग्रोथ इज 7%। So next we are asking what is return on equity assuming growth will continue forever. तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू कैन अप्लाई फार्मूला के ई, फार्मूला है V0, उसमें ग्रोथ ऐड हो जाएगी अपॉन करंट प्राइस है प्लस ग्रोथ। तो अब आपका करंट डिविडेंड जो लेटेस्ट है ये V0 बन जाएगा 14.03, उसमें ग्रोथ है आपकी 7, करंट प्राइस है शेयर का 125 प्लस 0.7, दिस विल बी अवर KE 14.03 into 1.07 divided by 125 plus 0.07, 0.12 plus 0.07, this is 19% KE. Further they are also asking return on new equity share। देखिए आप न्यू शेयर इशू करके हैं
उसमें देखो फिर आपको इन्वेस्टर को 3% ब्रोकरेज कॉस्ट भी पड़ेगी। तो इट मीन्स न्यू शेयर के लिए तो आपका जो प्राइस है, तो दिस इज प्राइस ऑफ न्यू शेयर, दैट विल बी 125 प्लस 3%, 125 प्लस 3%, दिस इज 128। देन यू कैन कैलकुलेट KE ऑन न्यू शेयर। फार्मूला सेम है, बस प्राइस चेंज हो जाएगा। G0 है आपका 14.03 इंटू 1.07 अपॉन 128.75 प्लस 0.07। तो 14.03 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाई 128.75, तो जिसे 0.1166 प्लस 0.07, तो 18.67%, 66%, that will be return on a new equity share। तो मीन्स कई बार कंपनी के दो शेयर होते हैं, एक प्रेजेंट शेयर है और एक नया शेयर होता है। तो इसके लिए एक टर्म भी हम यूज करते हैं, लेकिन सी दैट वन, इट मीन्स जो आपका प्रेजेंट शेयर है, प्रेजेंट शेयर ऑफ कंपनी, इसको कहते हैं इंटरनल इक्विटी। तो उसके लिए जो P0 होता है वो होता है आपका करंट में मार्केट प्राइस, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है। तो देखिए आप न्यू शेयर इशू करते हैं, न्यू शेयर इशूड, जिसे कहा गया एक्सटर्नल इक्विटी, मीन्स हम बाहर से फंड से रेज कर रहे हैं, बाहर से इक्विटी इशू कर रहे हैं। इसका जो इशू प्राइस P0 लेते हैं वो हम लेते हैं इशू प्राइस, किस प्राइस पर कंपनी इशू कर रही है। जैसे इसमें इशू प्राइस था 3% ब्रोकरेज ऐड हो जाती है। इशू प्राइस या इन्वेस्टर के लिए होता है ये परचेज प्राइस, कंपनी के लिए इशू प्राइस है। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में ये दोनों पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे आपके। तो वो उसमें मेंशन किया है शेयर ऑफ ए कंपनी करंटली सेलिंग फॉर ₹100। तो करंट प्राइस है जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 100। It wants to finance its capital expenditure of ₹1 lakh either by retaining earnings or by selling new share. If company sells new share, issue price है जो 95। अब कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, न्यू इशू एट द रेट ऑफ, उसका जो प्राइस है दैट इज 95। तो ये इशू प्राइस है आपका। द डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज, तो नेक्स्ट डिविडेंड दिया है G1 4.75 एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6%, ग्रोथ आपकी है 6%। आपको फाइंड आउट करनी है रिटर्न ऑन इंटरनल इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एक्सटर्नल इक्विटी। तो नंबर 1 रिटर्न ऑन इंटरनल इक्विटी, रिटर्न मीन्स डिविडेंड अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ। डिविडेंड है 4.75, प्राइस है इंटरनल मीन्स जो प्रेजेंट इक्विटी शेयर है उसका प्राइस है 100 प्लस ग्रोथ है 06। तो रिटर्न आ जाएगी 10.75%। Then we have second return on एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल मीन जो न्यू शेयर आप इशू कर रहे हैं, तो बस इसमें आपका प्राइस चेंज हो जाएगा। तो G1 आपका सेम है 4.75, प्राइस हम लेंगे 95 प्लस ग्रोथ 0.06। तो दिस विल बी रिटर्न ऑन इक्विटी 4.75 अपॉन 95 0.05 11% आपकी रिटर्न आई होगी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। 8 में मेंशन किया है इफ एन इन्वेस्टर पेज 50% मार्जिन फॉर ए स्टॉक परचेज एट ₹80 पर शेयर। तो आपने स्टॉक परचेज किया है, स्टॉक परचेज इट मीन्स एट द रेट ऑफ करंट प्राइस है आपका 80 और इसमें कुछ मार्जिन मनी है आपकी, मार्जिन इज 50%। तो मार्जिन का मतलब होता है ये आपके अपने फंड्स हैं, ओन फंड्स, और जो बैलेंस है आपका 50% तो वो आपने बोरो किया है,
गेटिंग बोरोड फंड्स। तो इसमें से अब आपके ओन फंड्स हैं 40 रुपीज। तो ओन फंड्स हम कहते हैं इक्विटी, ये आपकी इक्विटी है 40 रुपीज। तो आपने 80 का शेयर परचेज किया, उसके लिए 50% मनी बोरो कर ली और बैलेंस हमारी अपनी इक्विटी आ जाएगी। एंड इन्वेस्टर गेट्स डिविडेंड आपको मिला इसके ऊपर B1 6 रुपीज। सेल्स स्टॉक, फिर इसको हमने सेल कर दिया स्टॉक को, सेल्स स्टॉक एट प्राइस P1 दिस इज 90 रुपीज। फिर इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा एंड इन्वेस्टर हैज टू पे पेड इंटरेस्ट फॉर एंड इन्वेस्टर हैज टू पे कमीशन एक्सपेंसिव एंड इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टर पेड कमीशन एंड टैक्सेज दैट इज अवर 4 रुपीज। तो वट इज इन्वेस्टर्स 1 पीरियड रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको निकालना है 1 पीरियड की कितनी रिटर्न आपको मिल रही है। तो इट मीन्स ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। तो देखो 0 पीरियड में आपने परचेज किया शेयर 80 का, आफ्टर 1 ईयर आपको डिविडेंड मिल गया इसके ऊपर 6 रुपीज। शेयर को सेल कर गया 90 में, कुछ हमारे एक्सपेंसिव हो गए, जैसे जो 4 + 4 8 रुपीज हमारे एक्सपेंसिव। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए जब आप एक साल के लिए होल्ड करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी KE इज इक्वल टू, इसका फार्मूला था G1 + P1 - P0। अब एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव आप माइनस कर दो तो आपकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय P0। फिर P0 लेना होता है अपनी जो आपके अपने फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स इनटू 100, विच मीन्स हाउ मच इज डिविडेंड। डिविडेंड इज 6 रुपीज। 90 पर आपने सेल किया शेयर, 80 का परचेज किया था, एक्सपेंसिव हो गए 8, इक्विटी कितनी की आपकी 40 रुपीज। तो आपने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपकी रिटर्न आ जाएगी। तो जैसे ये 6 × 8 5 20% आपकी रिटर्न आ गई इक्विटी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये अच्छा पॉइंट है मार्जिन का। तो टाटा पावर प्रेजेंटली पेज डिविडेंड, तो करंट डिविडेंड पे कर रही है कंपनी 1 रुपीज एंड हैज ए शेयर प्राइस 20। तो करंट प्राइस है आपका 20। तो फर्स्ट केस, इफ डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर एवर। ग्रोथ आपको दी है 12% पर एनम फॉर एवर, बट इफ फर्म्स एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला है G0 इंटू ग्रोथ अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ। तो दिस इज कमिंग टू बी 1.12 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 0.12, तो 0.176। तो आपकी रिटर्न आ जाएगी 17.6%। तो नेक्स्ट आल्सो देयर आस्किंग इफ डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 20% फॉर 5 ईयर। और सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि जो ग्रोथ है आपकी सेकंड पार्ट, ग्रोथ इज इक्वल टू 20% फॉर 5 ईयर्स के लिए ग्रोथ रहेगी आपकी 20 एंड 10% देन ग्रोथ है 10% आफ्टर 5 ईयर्स फॉर एवर। बट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये मल्टी ग्रोथ मॉडल बन जाएगा। तो आपको कई फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा मल्टी ग्रोथ के लिए। So formula is our year 1, 2, 3, 4 and 5. What are dividends? 1 रुपये में ग्रोथ है 20%, 1.2, 1.44 and then it is 1.2 plus 20% plus 20%, 1.728 plus 20%, 2.074 plus 20%, 2.488। उसके बाद बन जाएगा 2.488। ग्रोथ है आपकी 10%। अब कई आपकी मिसिंग है, कई माइनस पॉइंट है
दिस विल बी वैल्यू। तो आप के ले सकते हैं, बट इट इज स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ के। इसका फार्मूला हमने किया था, जो डिवीजन है उसकी परसेंटेज निकालो कितनी है, और प्लस करके एवरेज ग्रोथ, दो ग्रोथ है आपकी 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2, इससे जो 5 + 15 20% आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट करते हैं 20 अभी, तो ये बन रहा है आपका इनटू 1.1, तो जिसे 2.737 अपॉन के ई माइनस 0.2। तो यदि आप पुट करते हैं 2.737 डिवाइडेड बाय 0.20 माइनस 0.10, तो उसकी वैल्यू है 27.37। तो फर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं 27.37, then apply PV factor at 20%. So 1 divided by 1.2, 0.833, 694, then 579, 482, 0.401। ये फैक्टर आपका सेम है 5th ईयर के लिए। तो इसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो जब कई आप ले रहे हैं 20%, बटे प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई कीजिए 1.2 इंटू 0.833, 1.44 इंटू 0.694, तो 1.728 इंटू 0.579, 2.074 इंटू 0.482, 2.488 प्लस 27.37 इंटू 0.401, टोटल वैल्यू जो 15.97। और आपको इसको करना है, P0 है 20, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसको रिड्यूस करके हैं, लेट अस ट्राई PV फैक्टर एट टू 15%। तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 2.737, 0.15 माइनस 0.10, 2.737 डिवाइडेड बाय 0.05, 54.74। So this value is 54.72, but this difference is very large. So let us try 3% का कितने ले लेते हैं, मे बी 17%, that will be better. So this is very large difference. So at 17%, 2.737 divided by 0.07. So this value is 39.1. कुछ डिफरेंस आपका सिर्फ 4 रुपीज़ का है, तो यही डिफरेंस आपको कह रहा है 12 रुपये का। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.17, 0.855, 731, 624, PV फैक्टर 534, 456। तो हाउ मच प्रेजेंट वैल्यू 1.2 इंटू 0.855, 1.44 इंटू 0.731 and 1.728 into 0.624, 2.074 into 0.534। फिर आपको लेना है जिस डिविडेंड और एक ये प्राइस 2.488 प्लस 39.1 इंटू 0.456, टोटल वैल्यू जो 23। तो ये जो आप ले रहे हैं 17% पर आ रही है 23.23। नाउ यू कैन इंटरप्लेट, आपकी एग्जैक्ट की आ जाएगी। लो रेट है 17 और उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 23.23, P0 है आपका 20, नीचे दोनों में डिफरेंस 15.97, 7.26 डिफरेंस इन रेट में है 3%। दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी 3.23 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7.26, 1.33, तो आंसर है 18.33% की रिटर्न ऑन इक्विटी। So this question came in CA May 2001, and again RPP
also November 2018. So next we have question number 10th. So in 10th, so data of a company is given about the dividend and market price for the last 4 years. आपको पिछले 4 साल का डाटा दिया है. ईयर्स हैं आपके 2017, 2018, 2019, 2020. तो आपको डाटा दिया है एक्स डिविडेंड प्राइस पर शेयर बिगनिंग. तो एक्स डिविडेंड प्राइस है आपका ऑफ शेयर इन बिगनिंग ऑफ ईयर, साल के शुरू में. जैसे 100, 110, 120, 130. फिर आपको दिया है कम डिविडेंड प्राइस भी आपको दिया है, कम डिविडेंड प्राइस, और ये आपको दिया है एट एंड ऑफ ईयर, एट एंड. जैसे 120, 137.5, 156 एंड 182. फिर आपको डिविडेंड पर शेयर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे 10, 17.5, 26 एंड 30. तो कम डिविडेंड में से यदि आप डिविडेंड माइनस कर रहे हैं वो आ जाएगा आपका एक्स डिविडेंड प्राइस, एंड दैट इज आल्सो एट एंड ऑफ ईयर, एट एंड में आ जाएगा. दिस माइनस इज 110, 120, 130, 152. तो अब देखिए आपके पास प्राइस का डाटा क्या बनता है. अब ये बिगनिंग का प्राइस है, 2017 का बिगनिंग बन जाएगा 2016 का एंड. तो अब मैं इसको दोबारा से अरेंज कर रहा हूँ. तो ईयर 2016, देन 2017, 2018, 2019, 2020. देखिए प्राइस, तो 17 का बिगनिंग का प्राइस है 100, ये हो गया 16, देन 110, देन 120, 130. ठीक है, देखो ये मैच हो रहा है 110, 20, 30, और ये बन गया आपका 2020 के एंड का प्राइस 152. तो हम कह सकते हैं ये 0 ईयर है आपके लिए, जिसे 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर. एक डिविडेंड पर शेयर है आपके पास साल के एंड में, जिसे 10, 17.5, 26 एंड 30. So they are saying that calculate return on equity as per realized yield method. तो आपको realized yield method अप्लाई करना है. उसमें होता है कि हम शेयर को सेल कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद, तो आपके 4 साल बनेंगे. ये बन गया आपका P0, यहाँ परचेज किया आपने शेयर, फिर हर साल डिविडेंड मिलेगा आपको, और लास्ट में आपने सेल कर दिया शेयर को 4th ईयर में, ये बन गया P4. अब आप इसका टेबल ड्रॉ कर सकते हैं रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए. उसका टेबल इस तरीके से बन जाएगा आपका. यू कैन राइट P0 है अब आपके पास 100 रुपीज, और 4 ईयर्स का क्या है आपके पास. 4 साल में आपको मिला कैश फ्लो में डिविडेंड आपको मिलेगा, और लास्ट में मिलेगी सेल प्राइस. डिविडेंड है आपका 10, 17.5, 26, 30, प्लस सेल प्राइस है आपका 152. टोटल वैल्यू मिली बना आपको 182. अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसके इक्वल करनी है आपने. तो स्टॉक की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, लेटेस्ट स्टॉक भी 10%, बट रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है, 182 को लास्ट में मिल रहा है, और यू कैन ट्राई स्टॉक भी 15%. तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1.87, 756, 658, 572. So how much is your pricing value? So 10 into 0.87, 17.5 into 0.658, 26 into 70 by 0.75. So this is 10 into 0.87, then 17.5 into 0.756, 26 into 0.658, 182
इंटू 0.570, टोटल वैल्यू जो 143। ये काफ़ी ज़्यादा है, हमें चाहिए 100, तो उसको रिड्यूस करने के लिए उसको इंक्रीज करते हैं। लेटेस्ट राइट 20%, 5% का हमने डिफरेंस ले लिया है। 1 डिवाइडेड बाई 1.2, 0.833, 694, 579 एंड 482। So this value is coming. This is 10 into 0.833, 17.5 into 0.694, 26 into 0.579, 182 times 0.482. Total is 123.25. So still it is higher. So let us try maybe 25%. PV factor है तो 25%. तो काफ़ी डिफरेंस है। 1 डिवाइडेड बाई 1.25, 0.8, 0.64, 0.512, 0.4096. So how much is your present value? तो फिर मेरे को गैस करके 3-4 बार कैलकुलेशन हो जाती है हमारी। इसे 10 इंटू 0.8, 17.5 इंटू 0.64, 26 इंटू 0.512, 182 into 0.4096. This total is still little higher, 107.10. आपको चाहिए 100, तो लेटेस्ट राइट 28%. 1 divided by 1.28, 0.78, 0.61, 0.477, 0.373. So value is 17.5 into 0.61 plus 7.8, 26 into 0.477 and 182 into 0.373, टोटली 98.76। तो अब आप इसमें इंटरप्लेट कर सकते हैं, आपकी KE आ जाएगी। लो रेट है आपका 25, ट्रैकिंग वैल्यू है आपकी 107.1, हमें चाहिए 100, नीचे आएगा दोनों में डिफरेंस माइनस 107.1, 8.337 इंटू डिफरेंस इज 3, तो फिर 7.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8.337, 27.55% is return on equity. Next we have question number 11. तो शेयर्स ऑफ वोएज लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट प्राइस अर्निंग रेशियो 8। तो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो है प्राइस अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स है, एंड कंपनी रिटेन्स 45% ऑफ अर्निंग्स। रिटेंशन रेशियो है आपकी 45%, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹5 पर शेयर। तो 45% है अर्निंग्स का, एंड अर्निंग्स इज इक्वल टू ₹5। ये है आपकी एक्सपेक्टेड, अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 5। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। तो इससे आपका जीपी रेशो आ जाएगा, जीपी रेशो है 55%, जिससे D1 आ जाएगा आपका। तो 5 इंटू 55%, 2.75। तो दे आर आस्किंग नंबर 1, बट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ मार्केट एक्सपेक्ट्स ग्रोथ ऑफ 15%। ग्रोथ दी है आपको 15% है, तो आपको KE कैलकुलेट करना है। फार्मूला है G1 2.75 अपॉन, अब प्राइस निकाल सकते हैं शेयर का। प्राइस ऑफ शेयर है EPS इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। EPS है आपकी 5 इंटू 8, 40 रुपीज, तो अपॉन 40 प्लस ग्रोथ है आपकी 15%, तो दिस विल बी अवर KE। तो 2.75 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 0.15, 21.875%। सेकेंड, इफ एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 16%, अब आपको दिया ग्रोथ 16%,
कैलकुलेट इंडिकेटिव मार्केट प्राइस विद सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको सेम रखनी है के ई। तो वट इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो इसका फार्मूला बन जाएगा V1 अपॉन के ई माइनस ग्रोथ। V1 है ही आपका पास 2.75 अपॉन 0.21875 माइनस 0.16, तो 2.75 डिवाइडेड बाय तो 5.875%, तो वैल्यू है आपकी 46.81। तो सी पॉइंट आल्सो देयर आल्सो इफ कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20, अब आपको के दी है 20% एंड इंक्रीज करके ग्रोथ है 19%, ग्रोथ है आपकी 19। देन कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, व्हाट विल बी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मीन्स वैल्यू ऑफ शेयर। अगेन सेम फार्मूला गिवन अपॉन के ई माइनस ग्रोथ, डिविजन है 2.75 अपॉन 0.20 माइनस 0.90 0.01, तो ये बन जाएगा 275 रुपीज विल बी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। नेक्स्ट वी हैव नंबर 12। तो दिस 11 क्वेश्चन, तो दिस केम इन CA मई 2011। ये भी CA एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मई 2011। Again we have question number 12. This question came in CA May 2012. तो इन दिसंबर AB कंपनी शेयर बाय सोल्ड फॉर पे 146, तो P0 दिया है आपको 146 इन दिसंबर, ये प्राइस चल रहा है। अ लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट है 7.5%, ग्रोथ एंटीसिपेटेड है 7.5%। AB कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड मीन B1 3.36, ये आपको दिया है। What rate of return an investor can expect to earn assuming dividends are expected to grow at 7.5% in perpetuity? तो आपको कैलकुलेट करनी है रिटर्न ऑन इक्विटी के ई। तो B1 है आपके पास 3.36 अपॉन प्राइस है 146 प्लस ग्रोथ है आपकी 0.75, दिस विल बी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 3.36 डिवाइडेड बाय 146 प्लस 0.075, दिस इज 9.8%, तो आपकी रिटर्न आ जाएगी ऑन इक्विटी के ऊपर। सेकंड पॉइंट देयर आर आस्किंग यू इफ यू एक्सपेक्टेड दैट AB कंपनी विल अर्न अबाउट 10% ऑन बुक इक्विटी, तो आपको रिटर्न मिलेगी इक्विटी ROE जैसे 10%, जो बुक वैल्यू है इक्विटी की, एंड रिटेन 60% हम रिटेन करेंगे। देन व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट, तो उससे ग्रोथ आ जाएगी आपकी रिटेंशन इनटू ROE, this is 60 into 10%, it means growth is 6%। and what will be cost of equity, तो KE भी आपकी चेंज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड सेम है 3.36 अपॉन 146 प्लस ग्रोथ हो जाएगी आपकी 6% 0.066, तो इट विल बी 3.36 डिवाइडेड बाय 146 प्लस 0.066, 8.3% will be our return on equity. Next we have problem number 13. This question came in CA, so May 2005, then again in November 2018. So a share of a company currently quoted at a price earning ratio आपको दी है 7.5 times, and retained earning per share is retained earning है आपकी retained earning being 37.5% is ₹3 per share. So compute रिटर्न ऑन इक्विटी, तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करनी है के ई, और आपको दी है ग्रोथ की 12%, क्योंकि आपको दिया है रिटेन अर्निंग दी है 37 इट मीन रिटेंशन रेशो है आपकी 37.5% एंड दैट इज इक्वल टू ₹3, तो उससे जीपी रेशो आ जाएगी आपकी 62.5%। तो आप डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं, 37.5 की वैल्यू है 3,
but the value 62.5. So this value is coming, so 3 into 62.5 divided by 37.5. This is 5 rupees. तो उसमें ये डिविडेंड आ गया आपका। तो बचे ये ईपीएस है डिविडेंड प्लस जो आपने रिटेन किया है 3, तो टोटल 8 रुपये की ईपीएस है। प्राइस अर्निंग रेशो है आपकी 7.5, इससे करंट प्राइस आ जाएगा शेयर का 8 इंटू 7.5, 60 रुपये। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे जो करंट रिटर्न ऑन इक्विटी के तो के आ जाएगी। और फिर डिविडेंड 5, उसमें ग्रोथ ऐड कर लीजिए 12%, प्राइस है शेयर का 60 रुपये प्लस ग्रोथ है आपकी 12। तो 5 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 0.1, 21.33%, ये आपकी के आ जाएगी। सेकंड देयर आस्किंग इफ एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 13%, अब ग्रोथ भी आपको 13%, बट विल बी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विद सेम रिटर्न ऑन इक्विटी, तो उससे प्राइस आ जाएगा शेयर का, प्राइस ऑफ शेयर। डिविडेंड है आपका 5, ग्रोथ है आपकी 1.13, कई सेम है 0.2133 माइनस 0.13, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो दिस इज जो 5 इंटू 1.13 डिवाइडेड बाय तो 8.33%, 67.83, ये आपका प्राइस आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आल्सो देयर आस्किंग इफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 18%, आपको कई दी है 18%, एंड ग्रोथ रेट इज 15%, तो व्हाट विल बी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अगर कंडीशन है सेम, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, डिविडेंड है आपका 5, ग्रोथ है 1.15, कई है आपकी 0.18 माइनस 0.15, तो 5.75 डिवाइडेड बाई 3%, 191, प्राइस हो जाएगा आपका 191.67। Then we have last question is number 14. So a share of a company is currently quoted at a price earning, इसमें भी प्राइस अर्निंग दी है आपको 7.5, रिटेन अर्निंग ये भी सेम है, रिटेन अर्निंग so being 37.5% is ₹3 per share. तो कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आपको फाइंड आउट करनी है KE। इफ इन्वेस्टर्स की जो रिटर्न है, इन्वेस्टर रिटर्न ऑन इक्विटी इज गिवन टू बी 12%, जिसे कहा गया ROE। तो पहले आप ग्रोथ कैलकुलेट कीजिए, ग्रोथ है रिटेंशन इंटू ROE। रिटेंशन है आपकी 37.5, ROE है आपकी 12%, इससे आपकी ग्रोथ आ जाएगी 37.5 इंटू 12%, 4.5%। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग है आपकी 3, तो इससे GP रेशो आ गई आपकी 62.5, तो इससे डिविडेंड आ जाएगा ₹5, इसी डिविडेंड, टोटल अर्निंग आ गई आपकी 8। प्राइस अर्निंग है तो आपका प्राइस आ जाएगा अर्निंग इंटू प्राइस अर्निंग, तो 8 इंटू जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है 60 रुपीज, बस पुट कर रखे हैं यही आ जाएगी। डिविडेंड है अब आपका 5, ग्रोथ होगी इसमें 1.045, प्राइस ऑफ शेयर है आपका 60 प्लस 0.045, तो 5 इंटू 1.045 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 0.045, दिस इज 13.21%। नेक्स्ट we are asking you in the same question, if growth is 13%, what will be market price। अब ग्रोथ दिया आपको 13%, what is your market price of share, कई आपको सेम रखनी है। तो डिविडेंड है आपका 5, ग्रोथ कर लीजिए चेंज 13%, KE 0.1321 माइनस 0.13, तो ग्रोथ है 13%,
angle KE. So in this case, one more difference is given. This is given expected रिटेन given है, ये आपकी एक्सपेक्टेड है, उससे आपका जो डिविडेंड है ये भी गिवन आ जाएगा, इवन हो गया आपका। तो उस केस में फिर आपको ग्रोथ ऐड नहीं करनी पड़ेगी डिविडेंड में, जिस इसको आप इग्नोर कर लीजिए। इट मीन्स ओनली जिसमें दिस इज ओके 0.5। आपकी जो के है स्लाइटली चेंज हो जाएगी 5/60 प्लस 4.045 12.83। तो फिर यहाँ भी अब आपकी जो एक्सपेक्टेड है ग्रोथ ऐड नहीं होगी आपकी, जब आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया होगा G1 तो 0.1283 1283। अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है तो हम लिखते हैं जिसे जो नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि प्राइस ऑफ शेयर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट इफ दिस इज गोइंग नेगेटिव तो इट विल बी जीरो, इग्नोर कर देंगे। एंड थर्ड केस, और शायद लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इफ के आपको दी है 18% एंड ग्रोथ इज अवर 15%, वट इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जैसे गिवन 5 ही रहेगा एक्सपेक्टेड है, अपॉन के है आपके 0.18 माइनस 0.15, तो 5/3% अपॉन 0.03, वैल्यू शेयरिंग 166.6 है। So this question also came in CA November 2030. So read your questions based on the return on equity. So PDF है which you can download. Thank you.